Now the program variables will be S1 will come as it is, A1 की जगह आ जाएगा X1 और हमारे पास है X2 as it is. Profit में we'll again have the coefficients from objective function. S1 का coefficient 0, A1 का coefficient is 62,000, A2 का coefficient is 124,000. क्वांटिटीज एंड वेरिएबल्स हम अगेन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लगा के फिल करेंगे. सबसे पहले की रो को फिल करें, दैट इज द सेकेंड रो. की रो को फिल करने का रूल है की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाय पाइवट एलिमेंट. पाइवट एलिमेंट इज 1. एनी एलिमेंट डिवाइड बाय 1 विल बी द सेम थिंग. तो मतलब हमें सारे जो की रो एलिमेंट्स थे सबको 1 से डिवाइड करेंगे, हमें यही मिलेगा. सो दीज विल बी अवर एलिमेंट्स 2 1 0 0 -1 एंड 0. देन द नॉन की रो का ट्रांसफॉर्मेशन रूल है. फर्स्ट रो अगर देखें तो द नॉन की रो एलिमेंट्स माइनस फिक्स्ड रेशियो इनटू द की रो एलिमेंट्स. क्वांटिटी नॉन की रो की थी 248 माइनस 3 into 2 that is 6. So we'll have 242 over here. Then 3 minus 3 into 1 that is 3. So we'll have 0. 0 minus 0 into 3 again 0. 1 minus 0 into 3 1. 0 minus -1 into 3, so that will be +3. 4 minus 0 into 3 that is 4. चेक करते जाना कहीं गलती तो नहीं हो रही है. देन द थर्ड रो अगेन अ नॉन की रो. So we'll have non की रो एलिमेंट्स माइनस फिक्स्ड रेशियो इनटू द की रो एलिमेंट. फिक्स्ड रेशियो 0 है. 0 मल्टीप्लाइड बाय ऑल द की रो एलिमेंट्स विल गिव अस 0 ओनली. एंड 0 को हम इन सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we'll get the same figures. So the same non की रो एलिमेंट्स will come over here also. 3 0 1 0 0 -1. And then the Z row 62,000 124,000 0 0 0. The C row 62 into 1 62,000 124 into 1 124,000. This will be 0. Then minus 62,000 minus 124,000. So we'll have NER 0 0 0 62,000 124,000. One more step. This is the highest positive. So this will be the incoming variable. Incoming variable will be S3. Why? Z minus C is NER, na? Yeah, so it's 0 minus and minus and minus. Then we'll find the replacement ratio. Quantity divided by the key column element. So this will be 242 divided by 4. Then 2 divided by 0 will be infinity. 3 divided by -1. So this will be -3. इसमें हमें चाहिए होता है लीस्ट पॉजिटिव. ये तो नेगेटिव हो गया. इन दोनों में से लीस्ट विल बी दिस वन 242 divided by 4. So outgoing variable will be S1. Pivot element shall be 4. की रो का कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा. नॉन की रो का फिक्स रेशियो इज नॉन की कॉलम एलिमेंट
की कॉलम एलिमेंट डिवाइड बाय पाइवट रेशियो, पाइवट एलिमेंट. So 0 divided by 4 will be 0. Minus 1 divided by 4 will be minus 1 upon 4. फुल फ्लेज्ड अगर क्वेश्चन आते हैं सिंप्लेक्स के, लीव देम फॉर द एंड. स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम अगर फुल क्वेश्चंस आते हैं. वी डू नॉट नो द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप कब तक चलेगा हमें कुछ भी नहीं मालूम. सो वील ऑलवेज लीव देम टुवर्ड्स द एंड. आखिरी के 1-1.5 घंटे में हम करेंगे. स्टार्ट कभी पेपर इससे नहीं करेंगे. हाँ, अगर छोटे क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ इनिशियल टेबल बनाना है या कोई पर्टिकुलर स्टेप ही करनी है, देन वी कैन गो फॉर दैट. बट अगर पूरा सॉल्व करना है सिंप्लेक्स तो हम उससे स्टार्ट नहीं करेंगे. पहले 1 घंटे में तो वो क्वेश्चन बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाएंगे. Then comes the fourth simplex table. Now the program variables will be S1 की जगह आ जाएगा S3, then we'll have X1 and X2. Profit shall be 0, 62,000 and 124,000. Filling up the key row, which is the first row. Key row will be filled up as key row element divided by the pivot element. So it will be 242 divided by 4. 60.5. Then 0 divided by 4, 0. Again 0, 1 by 4, 3 by 4 and 1. Next, the second row, which is a non-key row. Non-key row को fill करेंगे by non-key row elements minus fixed ratio into this. Again fixed ratio 0 है, तो हमारे ये जो non-key row elements है ये सेम इधर आ जाएंगे. So we'll have 2, 1, 0, 0, minus 1 and 0. Third row, again non-key row elements minus fixed ratio multiplied by the key row elements. So we'll have 3 minus 242 into minus 1 by 4. That is 3 plus 60.5. 63.5. Zero minus 0, 0. 1 minus 0, 0. 0 minus minus 4, minus 1 by 4, that is plus 1 by 4. 1 minus 0, 1. Oh, sorry. Then 0 minus minus 3 by 4. So this will be plus 3 by 4. Minus 1 minus 4 into minus 1 by 4. So this will be 0. Z will be 62,000, 124,000, 0, 0, 0. C will be again 62,000, then 124,000. This one is 0. This will be 124 divided by 4. 31,000. Then it is minus 62,000 प्लस क्या हुआ प्लस 124,000 इंटू 3 by 4. So minus 62 plus
93, 31,000. This one also 31,000, and this will be 0. NER shall be 0, 0, minus 31,000, minus 31,000 and 0. Since all the NER are less than equal to 0, this is the optimal solution. That means x1 के बनने चाहिए 2 यूनिट्स और x2 के बनने चाहिए 63.5 यूनिट्स. Now if we see these third and fourth simplex table, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी x1 x2 था, यहाँ भी x1 x2 है. जो रिप्लेसमेंट हुआ वो तो S1 स्लैक सरप्लस का हुआ, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है. बट द डिसीजन इज बेस्ड ऑन दिस क्वांटिटी. यहाँ पर x2 के 3 यूनिट्स ही थे, जबकि इधर x2 के आप 63.5 बना रहे हो. सो टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, अगर आप इतने यूनिट्स बनाओगे तो मैक्सिमाइज होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि जब सारे हमारे जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं वो प्रोग्राम वेरिएबल में आ गए तो सोल्यूशन खत्म. सोल्यूशन उसके बाद भी चल सकता है, until and unless you get all the NERs as less than equal to 0. After this, question 15th, formulate the LPP, revise the LPP, form the initial simplex table.
LPP यही है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछते जाना।
यहाँ तक हुआ है किसी का? सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल तक देख लो एक बार, ये सही है? सही है। जिनका अभी तक नहीं हुआ है सेकेंड सिंप्लेक्स, इंक्रीज योर स्पीड। बहुत पीछे चल रहे हो आप। क्या हुआ, कोई डाउट शिवानी?